Okay, ji. The topic is about trees. Trees are non-linear data structures. Till now we have discussed only linear data structures. In linear data structures we discussed about stack, queue, arrays, linked list. And the non-linear data structures are those data structures where is divergence. Basically these are non-linear. These are not on a straight path. These are the non-linear data structures. The examples are trees and graphs. Trees are used to represent the hierarchy, like organization charts, family trees. ठीक है, फैमिली ट्रीज में अगर आप देखते हो तो वहाँ क्या होता है, जिन घरों में जो नॉर्मली सादात हैं उनके घरों में अगर आप देखो तो उनके यहाँ एक फैमिली ट्री बना होता है कि उनका नबी पाक सरकार वालों से लिंक कैसे हो रहा है। ठीक है ना, आपके घरों में जो है वो फैमिली ट्रीज बने होते हैं। क्लियर? तो सेम इसी तरह जो है वो हायरार्किकल डेटा जहां कहीं है वहां हम जो है वो ट्रीज या ग्राफ्स जो है वो यूज करते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स जो है वो हम यूज करते हैं। लाइक कंसिडर अ सिनेरियो, like if I want to calculate the salary of division A, and if the data is stored in linear data structures like arrays or linked list, then we have to visit each and every record. But in case of non-linear data structures like trees, if the data is stored in trees like this one is a binary tree, so we have to visit only that part of the data which is relevant to us. Like this one, if I calculate the division A salary, then I will move from president to vice president of division A, and I will skip the non-relevant data which is of division B. Clear? तो यहां से अगर हम देखें तो यहां हमें ये आइडिया हो रहा है कि यहां जब हमने उसको नॉन लीनियर में स्टोर किया था तो हमें बेनिफिट ये हुआ कि हमने पूरी की पूरे डेटा को ट्रैवर्स नहीं किया, जस्ट उस डेटा को हमने ट्रैवर्स किया है जो कि हमारे रिलेटेड था, रेलिवेंट था। क्लियर? ओके जी, फॉर्मल डेफिनेशन। सो अ ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ n nodes, one of which is the root and n minus 1 edges. Total number of nodes are n. Why there are n minus 1 edges? As the root have no edge. So the tree is a collection of n nodes, one of which is the root node, and it has n minus 1 edges because each edge connects some node to its parent, and every node except the root has one parent. ठीक है ना, आपका ट्री जो है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है? रूट से स्टार्ट हो रहा है। रूट आपके पास जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है आपके हायरार्किकल डेटा का। क्लियर? देन देयर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज वी विल डिस्कस, लाइक लीव्स, सिबलिंग्स, पाथ एंड लेंथ ऑफ द a specific node. Okay ji, there is a path of length 0 from every node to itself, and in a tree there is exactly one path from the root to each node. Basically trees are subtypes of graphs. In graph there are multiple paths. We can move from one point to another point with different paths, but in trees we have exactly one path. So if I want to visit from node A to node X, then there will be only one path, but in case of graph there may be multiple paths. So the level of any node is the length of its path from the root. So the level will be the length of that path, and the degree of the node is its number of subtrees. Like
there are different terms discussed there. Like the root is at level 0, at height 0. Then further C and B is at height 1. D and E is at level 2. And F and G is at level 3. And the total levels are 4. So the height of the tree is 4. These are branches. Branches are used to connect different nodes. Like A and B is a node and is connected by a branch. And a node B is having 2 branches. One branch is B to D and another branch is B to E. And this one is a subtree. This one is a subtree. B is a subtree of A. C is a subtree of A. These are subtrees. So, what is leaves? Leaf node? Where there is a node having no child, no sub branches, no subtree. Like D is a leaf node, H is a leaf node, I is a leaf node, G is a leaf node, and C is a leaf node. Other than leaf nodes, all the nodes are internal nodes. So, B is the parent of E. D and E are children of B. F and G are siblings. And the path depth of D has depth 2. Why? D is have depth 2. 1 and then H is at depth 4. 1 A to B, then B to E, E to F, and F to H. So A to B is 1, B to E is 2, E to F is 3, and F to H is 4. So what are binary trees? Binary trees are those trees having maximum of 2 branches. Having maximum of 2 branches. That means there may be only one node. There may be only one branch. Right branch or left branch. Or there may be none of the branch. Right? A left or right subtree can be empty. Both the subtrees are themselves binary trees. And each element of the binary tree is called the node of the tree. So as we already discussed, the node at the top level is called the root node. How we can implement this binary tree? लिंक लिस्ट याद है? डब्ल्यू लिंक लिस्ट याद है? डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव हो रहे थे. Each node consists of right and left branch. So these pointers, these name of the pointers are replaced by next and previous. These replace the next and previous pointers. So next pointer is now named as right pointer, and previous pointer is named as left pointer. So this is a binary tree. Left subtree is connected by left pointer, and right subtree is connected by
right pointer. So we can easily implement by doubly linked list. We will discuss later in detail. The examples of some binary trees like one node, two nodes, three nodes. This may be for three nodes. Different shapes are there. So first one node will be root node. So in doubly linked list we use two pointers named first and last. But here we will use only one pointer. Why we will use only one pointer? Why you don't need first and last pointer there? आपके पास लास्ट नोड एक तो नहीं है ना यहाँ? लास्ट नोड हर पाथ की डिफरेंट है, ठीक है ना? सो इसलिए आप जो है उसका ट्रैक नहीं रख सकते कि लास्ट नोड कौन सी है, लेकिन फर्स्ट तो है आपके पास, ठीक है? इसको हम क्या कहेंगे? रूट नोड। क्लियर? तो रूट नोड से हम मूव करेंगे कि जहां जिस पाथ पे हमने जाना होगा, रूट नोड से हम जो है वो राइट या लेफ्ट सब ट्री में मूव करेंगे अकॉर्डिंगली। सो कंसिडर this one traversal techniques, like there are two traversal techniques like depth first search and breadth first search. Now first one is depth first search. Depth first search consists of three different techniques like pre-order traversal, in-order traversal and post-order traversal. First one is pre-order traversal. For pre-order traversal, we always visit the root first. Then traverse the left subtree in pre-order. Traverse the left subtree in pre-order. I change the color of this one, pre-order. Word pre-order. Why? क्या आपके माइंड में क्या आता है, क्यों ये मैंने इसको जो है वो कलर को चेंज किया है प्री ऑर्डर वाले वर्ड को? कुछ इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? एल्गोरिथम आपको ये कह रहा है ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन प्री ऑर्डर. So again we will move to left subtree and will apply the algorithm of pre-order. And for pre-order algorithm, first one statement is visit the root. So there may be some recursive call. रिकर्सिव कॉल हो रही है ना यहाँ कुछ, ठीक है? तो रिकर्सिव कॉल यहां हो रही है, तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वन स्टेटमेंट है ट्रैवर्स द राइट सब ट्री इन प्री ऑर्डर. ट्रैवर्स द राइट सब ट्री इन प्री ऑर्डर. रिकरियन का कंसेप्ट कुछ क्लियर है या थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है उसको? जी. So for pre-order traversal, number one statement is visit the root.
Second one statement is traverse the left subtree in pre-order. And third one statement is traverse the right subtree in pre-order. आपने प्री ऑर्डर में उसको ट्रैवर्स करना है. जब आपने प्री ऑर्डर में उसको ट्रैवर्स करना है, इसका मतलब यह है कि यहां रिकरियन यूज हो रही है. एग्जांपल से देखते हैं हम उसको. लाइक यहां अगर आप देखें, ये एक ट्री बना हुआ है जिसकी रूट जो है वो ए है, एंड वी वांट टू ट्रैवर्स इट इन प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल. फर्स्ट वन स्टेटमेंट इज visit the root. Root is A. Next one statement is traverse the left subtree in pre-order. Left subtree of A is null. So second statement will be executed. Third statement is traverse the right subtree in pre-order. Second statement अगर आप देखें तो अब execute हो चुकी है पूरी. Second statement full execute हो चुकी है, तभी हम third statement पे गए हैं. Third one statement is traverse the right subtree in pre-order. Right subtree of A is B. इसको हमने प्री ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है. जब हमने इसको प्री ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है तो फर्स्ट वन स्टेटमेंट इज विजिट द रूट, एंड रूट ऑफ B is B. सबट्री A का सबट्री B था ना. अब B की अब जब B पे पहुंच चुके हैं तो B का जो रूट है, B जो सबट्री है उसकी जो रूट है वो B है. Clear? So, second one statement is traverse the left subtree in pre-order. Traverse the left subtree in pre-order. B का left subtree कौन सा है? C. उसे हमने pre-order में ट्रैवर्स करना है. जब हमने उसको pre-order में ट्रैवर्स करना है तो first one statement is visit the root. C. Then traverse the left subtree in pre-order. C का left subtree कौन सा है? D. उससे pre-order में ट्रैवर्स करना है. Pre-order में ट्रैवर्स करना है तो first one statement is visit the root. Then traverse the left subtree in pre-order. D का left subtree null है. Base case true. Then third one statement traverse the right subtree in pre-order. Again null. ठीक है. तो फर्स्ट वन जो मेथड आपका कंप्लीट हुआ है वो कौन सा हुआ है? डी वाला. सबसे पहले जो इसकी मेथड की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई है वो डी वाला है. डी वाले को किसने कॉल किया हुआ था? सी वाले ने. कैसे पता चला आपको? एक्टिवेशन रिकॉर्ड आपके पास पड़ा हुआ है. क्लियर? वो स्टैक आपके पास पड़ा हुआ है, जिस स्टैक से आपको ये पता चल रहा है कि इसको कॉल किसने किया हुआ था. तो आप सी पे पहुंच गए. सी पे पहुंचने के बाद जो है वो आपने सी की दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन. सो मूव टू थर्ड वन स्टेटमेंट. थर्ड वन स्टेटमेंट इज ट्रैवर्स द राइट सबट्री इन pre-order. Number one statement is visit the root. E. Then traverse the left subtree in pre-order. इसका लेफ्ट सबट्री कौन सा है? नल है. ट्रैवर्स द राइट सबट्री इन pre-order. नल. सो सेकंड वन मेथड कौन सा एग्जीक्यूट हुआ फुली? ई को किसने कॉल किया था? सी ने. अब सी के अगर आप देखें तो सी के जो है वो दोनों एग्जीक्यूट हो चुके हैं. लेफ्ट भी एग्जीक्यूट हो चुका है उसका, राइट भी एग्जीक्यूट हो चुका है. क्लियर? सो थर्ड वन मेथड जो फुली कंप्लीट हुआ है वो सी वाला है. सी को किसने कॉल किया था? बी ने. अब बी की कौन सी स्टेटमेंट रहती है? थर्ड वन स्टेटमेंट रहती है ट्रैवर्स द राइट सबट्री इन pre-order. बी का राइट सबट्री नल है तो बी भी कंप्लीट हो गया. बी को किसने कॉल किया था? ए ने. क्लियर? सो ट्राई करें जरा ट्री को बनाने की. pre-order में ट्रैवर्स करने की ट्राई करें. इसको कैसे होगा? पहले बी पे जाएगा, बी से डी पे, डी से आई.
ये स्टूडेंट ने कर लिया है, एनीवन एल्स इसने कर लिया हो? ओके जी, कर लिया बहुत सारे लोगों ने, देख लेते हैं इसको। ओके जी, इसको इम्प्लीमेंट करना है आपने। प्री ऑर्डर रिवर्सल कैसे होगा? आइटरेशन से बहुत इजी है। गिवन ट्री को आपने प्री ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है। बहुत सिंपल है। If P is not equal to null, if P is not equal to null, then see out P of info, P of data, then pre-order P of left, then pre-order P of right. इसी को अगर आप आइटरेशन से करें तो तबीयत साफ हो जाए। यहां से अगर आप देखें 3 स्टेटमेंट्स में टोटल जो है अब आपका कोड चल रहा है। जिस किसी को रिकरियन की समझ आ चुकी है उसके लिए मेरे ख्याल में आप ये समझना मुश्किल नहीं है। If P is not equal to null, if P is not equal to null, then see out P of ID, P of data, then recursive call P of left, and then pre-order P of right. Okay, next one is in-order traversal. For in-order traversal, always remember that left always comes before right for pre-order, in-order and even for post-order traversal. ठीक है, तीनों केसेस में लेफ्ट हमेशा पहले आएगा राइट में। जब हम लेफ्ट फर्स्ट सर्च की बात कर रहे हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च की, तो उसमें हमेशा लेफ्ट सब ट्री पहले ट्रैवर्स होगा राइट सब ट्री से। वेदर के आप जो है वो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात कर रहे हैं, इन ऑर्डर की बात कर रहे हैं या पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन स्टेटमेंट इज ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन ऑर्डर। सेकंड वन स्टेटमेंट इज विजिट द रूट, and third one statement will be obviously right sub tree. Clear? So यहां से अगर आप देखते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि जो है वो ट्री हमारे पास जो गिवन है
उसको अगर हम इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करें तो फर्स्ट वन स्टेटमेंट इज ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन ऑर्डर। रूट से आपने स्टार्ट किया है, रूट नोड इज ए का लेफ्ट सब ट्री कौन सा है? नल। सो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है। सेकंड वन स्टेटमेंट विजिट द रूट ए। देन आफ्टर दैट थर्ड वन स्टेटमेंट इज ट्रैवर्स द राइट सब ट्री इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। राइट सब ट्री की अगर आप बात करते हो तो राइट सब ट्री आपका बी है, तो सबसे पहले बी प्रिंट हो जाएगा? नहीं, बी नहीं प्रिंट होगा, इसलिए कि आपकी पहली स्टेटमेंट है ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन ऑर्डर। लेफ्ट सब ट्री ऑफ बी इज सी। सी पे जब आप गए तो पहली स्टेटमेंट जो है वो इन ऑर्डर की है, ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन ऑर्डर। सी का लेफ्ट सब ट्री है डी, उसे आपने इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है। थोड़ा सा यहां से आपको रिकरियंट का अंदाजा हो जाना चाहिए कि पहली स्टेटमेंट से ही आप आगे मूव कर रहे हो। आपने दूसरे मेथड को, इस मेथड को इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को रिकर्सिवली कॉल कर लिया पहली स्टेटमेंट से ही। आप सेकंड स्टेटमेंट पे मूव नहीं हो सके। जब आप डी पे पहुंचे हैं, डी पे पहुंचने के बाद आपने पहली स्टेटमेंट है ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन ऑर्डर। डी का लेफ्ट सब ट्री कौन सा है? नल। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। देन विजिट द रूट डी। सो सेकंड वन डी विल बी प्रिंटेड। ठीक है, डी आ गया। डी आने के बाद उसके बाद आपने देखा ट्रैवर्स द राइट सब ट्री इन ऑर्डर। डी का राइट सब ट्री नल है। क्लियर? तो फर्स्ट वन जो मेथड फुली एग्जीक्यूट हुआ है वो कौन सा हुआ है? डी हुआ है। डी को किसने कॉल किया हुआ था? सी ने कॉल किया हुआ था। सी ने जब कॉल किया हुआ था तो सी की कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है? फर्स्ट वन। सेकंड स्टेटमेंट में चले जाए, विजिट द रूट, सी आ गया। उसके बाद ट्रैवर्स द राइट सब ट्री इन ऑर्डर। सी का राइट सब ट्री है ई, उसे हमने इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है। तो पहली स्टेटमेंट है विजिट द लेफ्ट सब ट्री। विजिट द लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री इसका कौन सा है? नल है। देन सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रैवर्स द विजिट द रूट ई। आफ्टर ई राइट सब ट्री। ठीक है, इसका लेफ्ट सब ट्री अगर आप देखो तो वो कौन सा है? नल है। ठीक है, और उसका राइट तो कंप्लीट हो गया। ई वाला, ई को किसने कॉल किया हुआ था? सी ने। सी ने कॉल किया हुआ था, सी भी कंप्लीट हो गया। सी को किसने कॉल किया था? बी ने। बी की पहली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट में चला गया। सेकंड स्टेटमेंट इज विजिट द रूट। So third one statement is visit the right subtree in ऑर्डर। B का right subtree नल है। क्लियर? उसको किसने कॉल किया हुआ था? A ने कॉल किया हुआ था। जब A ने कॉल किया हुआ था तो A की कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है? थर्ड। तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी हैं A की। क्लियर? ओके जी, देन इसको आप ट्राई करें। सीक्वेंस में है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच। एच है ये। इसका लेफ्ट नहीं है, इसका राइट भी नहीं है, डी होगा।
So complement method is in-order traversal. First one is if P is not equal to null. अगर P में null नहीं है तो क्या करो? Pre-order P of left. Then C out statement. After that, in-order P right. P of right. Next one is post order traversal. पहले लेफ्ट फिर राइट फिर Traverse the left subtree in post order. Traverse the right subtree in post order. Third one is visit the root. राइट में गए फिर इसके लेफ्ट में चले गए इसके लेफ्ट में चले गए Okay जी यहाँ से देख लेते हैं नंबर 1 traverse the left subtree in post order. A का left subtree कौन सा है? Null. Then traverse the right subtree in post order. A का right subtree कौन सा है? इससे आपने पोस्ट ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है. जब आपने इसको पोस्ट ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है तो पहली स्टेटमेंट क्या है? ट्रैवर्स द लेफ्ट सबट्री इन पोस्ट ऑर्डर. बी का लेफ्ट सबट्री कौन सा है? सी. उससे आपने पोस्ट ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है तो पहली स्टेटमेंट क्या है? ट्रैवर्स द लेफ्ट सबट्री. सी का लेफ्ट सबट्री कौन सा है? डी. डी को जब आपने निकाल किया तो उसकी पहली स्टेटमेंट राइट सब लेफ्ट सबट्री नल राइट सबट्री नल. सो जो थर्ड स्टेटमेंट आ जाती है विजिट द रूट. डी आ गया. उसके बाद इसको किसने निकाल किया था? सी ने. सी का लेफ्ट पार्ट हो गया. अब राइट पार्ट चले जाए. राइट सबट्री ई है. उसके लेफ्ट पे नल है उसके राइट पे नल है. उसको आपने विजिट कर दिया. थर्ड स्टेटमेंट ई आ गई. उसको किसने निकाल किया था? सी ने. सी की दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुकी हैं. थर्ड वन स्टेटमेंट रहती है विजिट द रूट. सी को किसने निकाल किया था? बी ने. बी की लेफ्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है. अब राइट पे नल पड़ा हुआ है तो थर्ड वन स्टेटमेंट है विजिट द रूट. किसने कॉल किया था इसको? ए ने. ए की दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुकी हैं लेफ्ट वाली भी और राइट वाली भी. अब जो है आप उसने क्या करना है? थर्ड वन विजिट द रूट. This is a quiz. ओके जी. ठीक है. अब इस स्टेटमेंट में टाइम लगेगा. मैं इसी का क्विज लूंगा. सर आज के 10 नंबर हो गए. So वही मेथड है बेसिकली. ओके जी. इसका इन ऑर्डर वसूल करें क्या आएगा? ट्राई करें. इसका इन ऑर्डर क्या आएगा? A multiplied by B minus C power D plus E divided by F.
ऐसा ही है। इसको एक काम करें ना कि स्टैक को यूज करते हुए जो आपने इन ऑर्डर टू पोस्ट ऑर्डर कन्वर्ट किया था वो जरा ट्राई करें। स्टैक को यूज करते हुए जो आपने इन ऑर्डर टू पोस्ट ऑर्डर कन्वर्जन की थी उसको जरा उस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करें, क्या आएगा पोस्ट ऑर्डर इसका। इसको पोस्ट में कन्वर्ट किया इन ऑर्डर निकाल के पोस्ट में ये बेसिकली आपका इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल बन रहा है, ठीक है। ये आपका प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल बन रहा है और ये आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रांसवर्सल बन रहा है। तो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कन्वर्जन जो आपने की हुई थी उसको अगर आप देखेंगे तो ये सेम रिजल्ट बनेगा जो पोस्ट फिक्स वाला पोस्ट ऑर्डर वाला आ रहा है। स्टैक को यूज करते हुए आपने इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन की थी ना, ठीक है। अब जब आपने इसको पोस्ट ऑर्डर में ट्रेवर्स किया है, इनफिक्स इन ऑर्डर वाली को पोस्ट ऑर्डर में ट्रेवर्स किया है, आप इस फर्स्ट वन को इन ऑर्डर वाली को अज्यूम कर लें कि ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है। देन आप इसकी पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल आप देखें तो वो सेम आपके पास रिजल्ट आएगा जो कि आपके पास इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन का था, ठीक है। तो ये पॉलिश नोटेशन जो है वो इसी इसमें यूज हो रही है।